So where did this dowry word come from? So the dowry word is from a Latin word called doter, means to portion out. Now the portion out meaning giving away a portion of the property to the daughter at the time of marriage. Now this is the concept that we know of today, but in the earlier times, in the ancient India, this concept was not recognized. Only the specifically the dowry term was not recognized. It was the stridhan that was recognized. Why stridhan? Because in the ancient or the Vedic times that we're talking about today, Vedic time period, in the Vedic time, people believed that at the time of marriage, this particular property was required because it provided a kind of financial security to the woman even after her marriage. So this property was given by the father and the brother or the other family members of the woman, and it was used at her will after the marriage, wherever and in whatever manner she wanted to use, she could use it. Now, in the medieval periods, nothing of that sort had changes with the Hindus, but of course, when later on there were very many various conversions also. Then, after the conversion, those people took up other religion or other cultural beliefs or their customs. Now, after the major change that took place in this concept of dowry that we are knowing of today is that. During the British time, specifically during the time of Lord Cornwallis, that was the period of 1793, when Lord Cornwallis completely he completely banned the woman from owning any kind of wealth or land or anything like that. So the wealth that she received as a stridhan, now that she now still their parents or the family members of the woman were giving their wealth and money and cattle and everything to at the time of marriage, but this time these wealth straight away went to the in-laws or the husband and not in the hands of the woman, because Lord Cornwallis had already said that women cannot hold any kind of property. So the dowry system that we know of today uh, had developed slowly over a period of time, and it did not, if you're thinking that it always existed like we know of today, it did not existed like this. It took a lot of time, it evolved through a period of time, and we can see how evil the dowry system is today, and it is so deep rooted in our society that we all know of, we are all aware of it. Okay. Okay, now the Parent Act that we know of is Dowry Prohibition Act. Okay, before the Dowry Prohibition Act, uh, there were other, because Dowry Prohibition Act is a codified, it's just one act that we use today. Before this, we had Bihar Dowry Prohibition Act, Andhra Pradesh Dowry Prohibition Act. Every state had their own set of rules and laws and everything to deal with the dowry prohibition, but these were not effective enough. Various dowry systems still existed. Dowry system, the cases that were going rampant, and then what happened was, there were huge protests and campaigns by various women organizations throughout the country. And then this Dowry Prohibition Bill 1959, that it was presented in Lok Sabha in April 24th, 1959, and then it was passed in 1961. So now we see that we have the Dowry Prohibition Act 1961. Okay. The act defines dowry under section 2. Now I will, because we don't have so much time, but still I will like to discuss few of this with a few of the features of Dowry Prohibition Act. uh, See, the dowry word in itself, okay, it's very wrong, because first of all, that
in the act itself, as you can see, that gift is recognized, but dowry is not. Okay, are you understanding? Gift is recognized, but dowry is not. So if if you are trying to say that we did not give dowry, it was just a gift, who will prove that it was not gift and it was not dowry and it was gift? There is nothing. And there is also then we have this kind of list to be made, and to be it was always to be, I think, at the time of marriage you have to prepare a list whatever the items are to be given at the time of marriage. But the list can be tampered. The list does not speak. The list has to be registered in the name of the daughter. These features are very important, because it's a very vague and a very, it provides a very gray area when you're talking about dowry. Also, another feature, another loophole in this thing, in this act, is that both giver and the taker of dowry are punished. Okay, now if somebody is coerced into giving dowry, so that person also will be punished, and the person who's demanding dowry, that person also will be punished. In that case, if the person who is coerced and wants to file a complaint out of fear that that person also will be liable under this act, he or that person or the family will not go and file a complaint against the people who are demanding dowry. So these all features in the Dowry Prohibition Act still makes it a very weak act. And then we see that since it was enacted in 1961, still the dowry cases, it went just out of hand. There were various cases of bride burns, and we had lots and lots of cases in central India. We had lots and lots of cases in Maharashtra, Rajasthan. Every corner of India we could see that there were lots and lots of women, especially married women of a particular age group, that was targeted. Now this outcome came out of a research by a women organization, and then this was presented in the parliament, and it was discussed, and then a need was felt to bring up stricter laws. Okay, so in there were two major acts that we are talking about. The two major laws that under IPC that we are talking about is Dowry Death and 498A, that is cruelty against women by their husband and family. Okay, so these two came under the Criminal Amendment Act 1983 and 1986. So under this section. Okay, so under this section, the essential features that came up was that first of all, the death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise under anything other than any normal circumstances. Such death should have occurred within 7 years of her marriage. These are the essential features that need to be fulfilled before you file a complaint again under the section 304B IPC. So next is, she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any of the relatives of her husband. Such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry. जैसे पहले डॉरी प्रोहिबिशन के ऊपर था, अभी मेरा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ मैन एंड वर्क प्लेसेस। तो जो बाकी इश्यूज के साथ ही जो सेक्सुअली हरासमेंट का केसेस हैं वो आ तो बहुत रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं रेगुलर अपनी लाइफ में कि केसेस मैन के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन जो होती है या रिसर्च जो होती है वो बहुत बहुत कम हो रही है। हम जब भी बात सेक्सुअली हरासमेंट की करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विमेन आता है हमेशा। जब हम रिसर्च भी करते हैं गूगल पे जाके तो विमेन की ही सेक्सुअली हरासमेंट की बातें जो आती है, तो इसीलिए ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो केसेस आ रहे हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे लॉ फ्रेम किया जा सकता है।
तो जो आज के टॉपिक में मैं जो डिस्कस करूंगी तो मेन पॉइंट्स हैं वो पहले तो ये है कि व्हाई द नीड अराइज टू स्पीक ऑन दिस इश्यू, व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, क्या रीजंस हैं इसके और क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं मैन के ऊपर, और व्हाट आर द लॉज ऑन दिस इश्यू एंड व्हाट वेयर मैन कैन कंप्लेन एंड व्हाट आर द सजेशंस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन। सो जो मेन नीड है इस सेशन का और इस टॉपिक को स्पेसिफिक लेने का, वो दो रीजंस हैं और दो ही जो नीड है इस टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करने की। द फर्स्ट वन इज टू अवेयर द पार्टिसिपेंट्स अबाउट सेक्सुअली हरासमेंट ऑफ मैन एंड रेज द वॉइस इफ एनीवन इज फेसिंग सच काइंड ऑफ वायलेंस, बिकॉज सेक्सुअली हरासमेंट होता है मैन के साथ, लेकिन इस पे बात नहीं करते। जिनके साथ हो रहा है वो बात नहीं करते, इस टॉपिक पे बात नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर हम इस पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शायद जो मर्दानगी है वो उस पर कोई क्वेश्चन रेज ना हो जाए, और बहुत सारी जो फैक्टर्स जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी जिस वजह से ये टॉपिक को, इस इशू को आगे नहीं लेके आया जाता। लेकिन अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो ये इसका जेंडर, सेक्स के साथ या एज के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर इसके साथ लिंक नहीं है, ये एक पावर का इशू है। जो पर्सन पावर में होगा वही पर्सन इसको मिसयूज करता है। अगर वर्क प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट होम और प्रिजन्स, तो जो पावर में है ऑफिस में तो वो अपनी पावर को मिसयूज करता है और जो भी एम्प्लॉइज हैं या कोलीग्स हैं उसको सेक्सुअली हरास करता है। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर्सन ऐसा सोच रहा है तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता। तो जरूरत है अवेयर करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने के इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सो दैट एक चेन क्रिएट की जाए, एक मूवमेंट क्रिएट किया जाए, सो दैट कि लॉ बन सके। क्योंकि जो इंडिया में लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट में वो सब फीमेल के लिए है। अगर हम आईपीसी की बात करें, अगर हम 2013 एक्ट की बात करें, तो those act and sections are specifically for women. In every section it is mentioned that women as a victim and man as a perpetrator और मैन एज अ अब्यूजर। तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि मेल जो मैन जो है वो भी विक्टिम हो सकता है। तो ये अगर हम अवेयर नहीं होंगे प्रॉब्लम के बारे में, अगर हम प्रॉब्लम को की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे, उसके रिगार्डिंग अवेयर नहीं है, कंप्लेन नहीं कर रहे, तो लॉ की एग्जिस्टेंस कभी नहीं आएगी। जैसे पहले स्वामी चैटर्जी ने बताया कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कब आया, जब डिमांड रेज हुई, जब केसेस बहुत सारे आए, डिमांड हुई, तो हमने लॉ बनाया। विमेन के सेक्सुअल हरासमेंट में लॉ कब आया, जब बहुत सारे केसेस आने लगे, तो जरूरत हुई कि ऐसा कानून व्यवस्था बनाई जाए सो दैट हम इक्वेलिटी को मेंटेन कर सके और जो वर्क प्लेस है वो विमेन के लिए भी उतना ही सेफ बना सके। तो हमने लॉ बनाया। लेकिन अब बात आ रही है मैन की, जैसे बोथ आर वर्किंग, अभी हर जगह पे मैन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग, तो मैन के साथ भी हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं। तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना और एक मूवमेंट क्रिएट करना, सो दैट कि जो हमारे इंडिया के लॉज है वो स्पेसिफिकली फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट वो जेंडर न्यूट्रल हो। ये दो मकसद है मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करने का। अगर हम लॉज की, जैसे मैंने बात की है कि कोई लॉ स्पेसिफिक नहीं है, एक दो लॉज हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी, अदरवाइज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा ये किसी का राइट, सबका राइट बन जाता है कि हम चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है वो किसी मैन को हरास करे, क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। और बेसिक ह्यूमन राइट क्या है, एक रिस्पेक्ट और डिग्निफाइड लाइफ, और डिग्निटी के साथ ही काम करना कहीं पे भी। तो ये हमारा एक बेसिक ह्यूमन राइट है। अगर इसकी वायलेशन हो रही है तो इट इज अ वायलेशन ऑफ अवर ह्यूमन राइट आल्सो। ILO ने भी जैसे स्पेसिफिकली इन 1944 एंड 1955 में ये अफर्म किया था दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स irrespective of race, creed or sex have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity, and the discrimination constitute a violation of rights enunciated by the Universal Declaration of Human Rights. It's itself a violation of a Universal Declaration of Human Rights. So the purpose of these convention, the purpose of international convention is to uphold the human rights of workers, जो इक्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ उनका जो डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह के से ना हो, उनकी कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन ना हो, तो जरूरी है। और हमारे प्रीएम्बल में भी स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, नो विल मेंशन द डिग्निटी ऑफ ओनली वुमेन, मैन, वुमेन, इवन ट्रांसजेंडर, डिग्निटी हर ह्यूमन बीइंग की जरूरी है।
और 21 भी स्पेसिफिकली अगर वो राइट टू लाइफ की बात करता है तो वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। तो अगर किसी के मैन के साथ सेक्सुअली हरासमेंट हो रही है, दैट इज वायलेशन ऑफ, डायरेक्टली वायलेशन ऑफ अवर ह्यूमन राइट्स। और इतनी सारी कन्वेंशंस बनने के बाद, लॉ बनने के बाद वायलेशन हो रही है, लेकिन लॉज उसके ऊपर कोई नहीं है। जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं, हम इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं। इक्वेलिटी के लिए हमें हमें पता था कि पहले फीमेल को ऐसा वल्नरेबल सेक्शन माना जाता था, तो हमने स्पेसिफिक लॉज बनाए उनको इक्वेलिटी में लाने के लिए, सो दैट वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। बट इट डजंट मीन दैट वी विल मिस यूज दैट लॉज एंड हम मैन की जो हरासमेंट हो रही है उसको अनदेखा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट ये है कि इट्स अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हम सेक्सुअली हरासमेंट की बात कर रहे हैं तो इस कहते किसको है सेक्सुअली हरासमेंट, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ नेचर, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी कंसीडर एज अ सेक्सुअली harassment. There are different definitions given by different convention and different persons, but I have chosen two definition. One is by International Labour Organization and another in the Act 2013. As per ILO definition, sexually harassment contains, some points are very important, contains any physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. That conduct must be a sexual nature, and other conduct based on sex affecting the dignity of women and men. There is no mention only women. There is man, woman and men, which is unwelcome, unreasonable and offensive to the recipient. So here there is some जैसे कौन सी काइंड्स, व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वी विल कंसीडर, वेर इज फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल। दैट मे बी फिजिकल, फिजिकल टच हो सकता है इवन टिल रेप तक का। वर्बल हो सकता है, मुझसे कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा जोक किया, कुछ ऐसा कमेंटिंग की। नॉन वर्बल, चाहे कोई पोर्नोग्राफी मूवी दिखाई है या ऐसा कुछ जेस्चर है, साइन है, दैट जेस्चर मस्ट कंटेन सेक्सुअल, मस्ट बी सेक्सुअल नेचर, और that affect the dignity of women and men, and that जो भी ये एक्ट हो रहा है वो मस्ट भी एक कौन सा होना चाहिए, अनवेलकम है और अनरीजनेबल है। इसमें ये बात बहुत जरूरी है, कंसेंट की कहीं बात नहीं आती, क्योंकि कंसेंट के साथ हो रहा है। क्योंकि अगर वर्किंग प्लेसेस की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जो कंसेंट है वो मायने नहीं रखती। अगर बॉस सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है तो एम्प्लॉयज जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब के डर में या प्रेशर में उनको कंसेंट उनकी प्रेशर में होती है, तो दैट इज वाई द वर्ड यूज इज अनवेलकम। कहीं पे भी अनवेलकम एंड अनरीजनेबल ऐसा बिहेवियर होता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज sexual harassment. And the second one is the explicit or implicit use of a person's rejection of or submission to such conduct as a basis for a decision which affects that person's job. That is already clear कि उसकी job को affect कर सकता है। Any conduct that creates an intimidating, hostile or humiliating working environment for the recipient. हो सकता है उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए, जहाँ उस मेल या फीमेल, उसके लिए ऐसा हॉस्टाइल और इमीडिएट जो है माहौल क्रिएट हो सकता है। तो इस सब चीजों में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो वो सेक्सुअली हरासमेंट में कवर होता है। इन इंडिया द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013 डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट एज इट इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअली फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of कि do we really need to amend Article 14? And ma'am reply was very well, and it was very substantiated and it was very subjective. मैम ने जो भी कहा कि नहीं, हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, because Article 14 talks about right to equality. Article 21 talks about right to life, right to expression, all the fundamental rights. ये सारे इंडिविजुअल, ये सारे लोगों के लिए है, ये सारे ह्यूमन राइट्स के लिए है। इसमें कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं है। देयर इज नो बायसनेस रिगार्डिंग एनी कास्ट, एनी कल्चर, एनी सेक्स, एनी रिलीजन, whether they are men, whether they are women or whether they are others, right? तो अगर हम बात करते हैं
तो देखिए क्या होता है ना कि हम जो जो मॉडल हम लोग तैयार करते हैं, कोई भी सोसाइटी एक मॉडल से चलती है। जो जो हम लोग का जो जो पहले से जो बिलीफ आ रहा है कि नहीं, जो वुमेन है उनको हम हरास करते आ रहे हैं और हम उनसे डॉरी मांगते हैं। कई सारे सुसाइड केसेस हुए हैं, मेंटल एगोनी के केसेस होते हैं, मेंटल हरासमेंट के केसेस होते हैं। और ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि हमें डॉरी लॉ बनाना पड़ा, हमें डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बनाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि ये अब कोई भी लॉ जब इतना ज्यादा सप्रेस कर जाता है, तो उसको सप्रेस करने के बाद उसकी उसका इफेक्ट और उसका साइड इफेक्ट दोनों होता है। तो अब जो 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 इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट की तरफ चलता जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह साइड इफेक्ट है। दिस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो भी जो लॉ बने हुए हैं, जो इनेक्टेड लॉ है, दैट इज ऑल्सो नीड ऑफ द सोसाइटी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड that any law cannot be absolute, right? There has to be reasonable restrictions. That reasonable restrictions are in everything. These reasonable restrictions are in freedom of expression. These reasonable restrictions are in these laws, the interpretations, anything, right? तो अगर हम ये बात करें कि हमें जो अभी अब जो है मेंस राइट की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, तो हमें इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि हमें एक एक जो हमारा समाज है उसमें हमें एक रिलायबल सब्सटेंशियल डाटा हमारे पास है, जो कि ये कहता है कि मेंस जो हैं वो अब हरास हो रहे हैं, उनको मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। और ये जो प्रेशराइजेशन है, मैं सिर्फ उसको कैटेगराइज नहीं करूंगा कि ये मैरिड मैन के ऊपर है, बट ये सोसाइटी जो है ये पहले से ही देखते आ रही है। एक फैमिली में जब जब भी कोई काम होता है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर कोई मस्कुलाइन काम है तो वो मैन ही कर सकता है, और वही प्रोवाइडर है, वही प्रोटेक्टर है, और वही जो है केयर टेकर है फैमिली का। क्योंकि ये इसी बिलीफ और इसी एक कल्चरल एथिक्स से हम चलते आ रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज को समाज में अगर बदलना है तो, और ये चीज जब सप्रेस होते आई, और अगर हमें अब इसको समाज में बदलना है तो हमें जेंडर इक्वालिटी लॉ भी लाना पड़ेगा। अगर हमने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हम लाए हैं उसके जो सेक्शंस हैं, वो अगर वुमेन ओरिएंटेड लॉ हैं, तो हमें उसी उसी लॉ में हमें अमेंड करके मेन ओरिएंटेड भी जो है सेक्शंस डालने पड़ेंगे। क्योंकि मेंस आर फेसिंग इट ऑन अ वेरी हार्डशिप, दे आर फेसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल मेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए इससे इसका इसका रीजन क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो जो आज आज के समय में जो लड़कियां हैं, जो 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 मैरिड वुमेन, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उनके साथ जो इशू क्रिएट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्निज्म इन द सोसाइटी, राइट? बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग द वेस्ट कल्चर, वी आर अडॉप्टिंग द फेमिनिज्म कल्चर, राइट? तो ये, और इनका जो आज का जो आज का समाज है, जो आजकल के जो आजकल की जो सोसाइटी में जो जो औरतें हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर अगर सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, एंड दैट इज द रीजन they are leading towards a wrong feminism society. They are leading to a wrong feminism concept. तो ये जो कॉन्सेप्ट जो ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ये कभी हमारे समाज में नहीं था। ये जो आया, ये वेस्ट से आया है। ये कभी भी हमारे समाज में हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिए होते तो हमारे हमारे समाज में रानी लक्ष्मीबाई हुई ही नहीं होती। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए होते तो हमारे पास इतनी सारी स्पिरिचुअल लीडर्स, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स लड़कियां होती ही नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे सरोजनी नायडू है, और भी जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लोग कभी होते ही नहीं। और उससे पहले भी अगर हम देखें, हमारा जो हिस्ट्री भी बात करता है, जो हमारा हम लोग के जो वैदिक लॉज भी बात करते हैं, जो हमारा जो एटर्नल जो हिंदुइज्म की कल्चर भी बात करता है, वो कभी भी हिंदू वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ता नहीं है, वो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ काम करता है। बट दी करेंट सोसाइटी इज लीडिंग टू अ वेरी रॉन्ग वे एंड अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। ऐसा नहीं है कि ये मेंस राइट का जो इशू है सिर्फ इंडिया में है, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह है। क्योंकि ये चीज चलता ही आ रहा है, और ये चीज जो है आज के टाइम में, जो ये फेमिनिज्म का जो इशू इतना ज्यादा उठ गया है, ये उस कारण से ये बहुत बहुत ज्यादा और बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि समाज में एक गलत लेसन आ रहा है कि जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ मेन कर रहे हैं, और वो सिर्फ मेन करते हैं। बट अगर हम केसेस देखें, और अगर हम पूरी तरह केसेस के एनालिसिस देखें, तो जितने रेप केस होते नहीं हैं उसके दोगुना केस जो है वो सेटल हो जाते
जाते हैं। जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते नहीं हैं, उसके 70% जो डिस्प्यूट है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं। और इसके इसीलिए जुडिशरी जो है वो इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और जुडिशरी ने ये चीज बार बार बोला है कि हम कोई भी लॉ का किसी भी जो सोसाइटी को फंक्शन करने की या सोसाइटी को स्टेबल बनाने के लिए अगर कोई लॉ आया है तो उसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जुडिशरी ने एक पर्टिकुलरली एक लाइन बोला जो मेरे को काफी अच्छी लगती है, और ये लाइन जुडिशरी ने तब बोला जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एक वुमेन के ऊपर में एक 25 लाख रुपीस का फाइन लगाया, क्योंकि जब कोर्ट रिसीवर गया उसके पास किसी काम के लिए, तो उसने कोर्ट रिसीवर को धमकी दी कि मैं आपके ऊपर में जो है मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दूंगी, और क्योंकि आप जो है ये काम कर रहे हैं, जबकि वो जुडिशरी से अपॉइंट हुआ था वो काम करने के लिए। तो उसी कारण से जब वो कोर्ट में आया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर 25 लाख रुपीस का फाइन लगाया, और उसके बाद ये चीज बोला उसमें कि देयर शुड नॉट बी अ पेटेंट मिसयूज ऑफ सोशली इनेबलिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो सोशली इनेबलिंग पीस ऑफ जो लेजिस्लेशन है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेटेंट मिसयूज है वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें समझना पड़ेगा कि हमें मेंस राइट के बारे में बात करने की क्यों जरूरत है। क्योंकि हम समाज में अगर हम जो जो मेन है, अगर वो आकर के ये कहते हैं कि हम जो है सेक्सुअल हरासमेंट का अगर हमारे साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, या हमारे साथ कोई भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि समाज में सिर्फ फीमेल्स के साथ होती हैं, अगर हम उस चीज का शिकार हो रहे हैं, तो हम उस चीज को समाज में आके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि समाज हमारा उस चीज को जो है मानता नहीं है, उसको ऑथेंटिसिटी नहीं देता है। तो इसी कारण से आई थिंक दैट कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो लॉज हैं, जो सेक्शंस हैं, वो तो आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि व्हाई डू वी नीड मेंस राइट नाउ, एंड व्हाई डू वी नीड अ जनरल इक्वालिटी लॉ। और जैसा कि जो हमारी लास्ट स्पीकर हैं उन्होंने बताया कि 2 लॉज ऐसे हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल बनाए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने यूजीसी का लॉ के बारे में बात की हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जो है उन्होंने चाइल्ड अब्यूज एक्ट की भी बात की। तो इसी तरह से जो बाकी एक्ट्स हैं इंडिया में, इसको भी जेंडर इक्वल बनाना बहुत जरूरी है। और जेंडर इक्वलिटी अगर नहीं आएगा, अगर हम लोग समाज में जो है जो हम लोग मेन को एज अ परपिट्रेटर और वुमेन को एज अ विक्टिम देखते रहेंगे, तो इससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, और जो कि चलता चला जा रहा है। और एक कारण से ये ऐसा आउटबर्स्ट लेगा कि विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अ एथिकल सोसाइटी, फॉर अ कल्चरल सोसाइटी। इसीलिए इस पे तुरंत काम होना चाहिए और तुरंत लॉ आना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना। हाँ जी। आज के सफल कार्यक्रम के समाप्त करते हुए इस कार्यक्रम के प्रवक्ताओं तथा प्रतिभागियों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। अब मैं आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।